We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। Thank you for watching, and we really appreciate your time in watching this program to be benefited from God's Word. आपके समय के लिए धन्यवाद और हम सच में सराहना करते हैं कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन से लाभ प्राप्त कर सकें। आपका धन्यवाद। And in these days we were talking about the teachings of Jesus Christ. और आप जानते हैं इन दिनों में हम यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। His teachings are admired by so many people in the world. दुनिया में बहुत से लोग उसकी शिक्षा की सराहना करते हैं। It doesn't depend on what religion you belong to. People from all over the world, regardless of the religion, admire his teachings and value his teachings. चाहे लोग किसी भी आस्था के क्यों न हो, पूरी दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की सराहना करते हैं और ये उत्तम शिक्षा है, ये मानते हैं। If you've been following our program, you will notice that we've been speaking from the Sermon on the Mount, which Jesus Christ gave when he was living in this world. अगर आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि हम पहाड़ी उपदेश के बारे में बता रहे हैं जो कि यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते हुए सिखाया था। It is found in the Gospel of Matthew, chapter 5 to 7. और हम इसे देख सकते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 से 7 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। Matthew has recorded it elaborately. मत्ती ने इसे बहुत ही विस्तार से लिखकर बताया है। And the teachings begin with a section called Beatitudes. और ये शिक्षा वहाँ पर धन्य है इन बातों से शुरू होती And है। the Beatitudes are people who are blessed if they follow the qualities that are prescribed by the teachings of Jesus Christ. यीशु मसीह की शिक्षा का पालन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए इस तरह से आशीषित है, ये बताया गया। And these are qualities that belongs to God's people and qualities that are peculiar to the people belonging to the kingdom of God. ये तो परमेश्वर के लोगों की विशेषता है और ऐसे लोगों की विशेषता है जो कि परमेश्वर के राज्य के हैं। ये उन लोगों के स्वभाव गुण हैं। So this is the recommendation God gives to us. परमेश्वर हमें इसी तरह की सलाह देते हैं कि तुम ये किया करो। You follow this, you will be blessed. तुम अगर इसका अनुकरण करोगे तो आशीष पाओगे, ये कहा। If you remember, in the two programs earlier, we spoke about blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले हमने चर्चा की थी कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। We also saw blessed are those who mourn, for they will be comforted. हमने ये भी देखा कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। And today we want to look at another quality, or the next quality prescribed in the Gospel of Matthew, 5th chapter, in the Beatitude section. और आज हम मत्ती अध्याय 5 में जो धन्य हैं इसमें यहाँ पर अगली विशेषता या अगला गुण देखेंगे। Matthew chapter 5 verse 5. मत्ती अध्याय 5 वचन 5 कहता है, It says, blessed are the meek, for they will inherit the earth. ये कहता है धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। A lot of people want to inherit the earth. बहुत से लोग इस पृथ्वी के अधिकारी होना चाहते हैं Or they want to buy as much land and property as possible. और वो जितनी संभव हो सके उतनी जमीन खरीदना चाहते हैं। It is much more than that, not just the land. It is like having a peaceful and wonderful, amicable relationship with people. और ये तो केवल इतना ही नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर है कि लोगों के साथ में शांतिपूर्ण संबंध बनाकर रखें, उनके साथ शांति से जीते जाएं। So God is saying here, blessed are the meek, for they will inherit the earth. परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, इस तरह से बताया गया। It refers to people who live in meekness before God and others. ये तो ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने नम्रता में रहते हैं। Sometimes it can be easy for people to be meek and humble before God. देखिए, कई बार ये आसान होता है कि लोग परमेश्वर के सामने दीन रहें, नम्र रहें, Because he is God. क्योंकि वो तो परमेश्वर हैं। Oh, he is powerful. वो तो बहुत ही सामर्थी हैं। Oh, he can do whatever he वो wants. तो जो भी चाहे वो सब कर सकते हैं। So
sometimes out of fear, people can live in meekness before God. और इसलिए कई बार डर के कारण लोग परमेश्वर के सामने नम्रता में जीते हैं। They find it easy in that way. उन लोगों के लिए उस तरह से ये बहुत ही आसान हो जाता है। But I'm talking about a meekness not just before God, it is before others as well. मैं केवल परमेश्वर के सामने ही नहीं लेकिन दूसरों के सामने भी नम्रता के बारे में यहाँ पर कह रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण You know, है। there are different words in English that are substituted for this word meekness in many translations. बहुत से अनुवादों में ये जो नम्रता शब्द है इसकी जगह पर दूसरे भी अलग अलग शब्द उपयोग किए गए हैं। And one of the most common substitution was the word humble. और इसके लिए सामान्य रूप में आने वाला दूसरा शब्द तो दीनता है। You can even say, blessed are those who are humble, they will inherit the earth. आप कह सकते हैं कि धन्य है वे जो दीन हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ऐसे भी आप कह सकते हैं। New American Standard Bible uses the word gentle. न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल वर्जन कहती है कि धन्य है वे जो कोमल हैं या कोमल मन वाले हैं। Blessed are those who are gentle, for they will inherit the earth. धन्य है वे जो कोमल दिल के हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। So meekness is a quality of being friendly, being mild, being gentle. यानी नम्रता तो ऐसी विशेषता है कि नम्र होना, दीन होना, कोमल मन वाले होना। It is opposite of those people who are very rough and tough. ये तो बिल्कुल उन लोगों के विरोधी है जो कि बिल्कुल कठोरता से रहते हैं और विरोध में रहते हैं। Hard and violent people. वो तो आक्रामक और बहुत ही कठोर दिल वाले होते हैं। Tell me, who would like to relate to such people? आप मुझे बताइए कौन ऐसे व्यक्ति के साथ में रहना चाहेगा? Or would you be very friendly with such people who are very hard, violent? क्या आप ऐसे लोगों के साथ में बड़ी मित्रता के साथ रहते हैं जो कि बहुत ही कठोर हैं, जो कि बहुत ही आक्रामक हैं? Rather, we would prefer people who are pleasant, who are gentle, who are kind. इसके बजाय हमें वो लोग पसंद हैं जो कि बहुत ही नम्र हैं, जो कि बहुत ही दयालु हैं। That's why Jesus is saying this here. Blessed are those who are meek, for they will inherit the earth. और इसलिए यीशु यहाँ पर कहते हैं कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। In the Greek culture, friendliness or gentle friendliness is highly valued as a social virtue. अगर ग्रीक परंपरा के अनुसार अगर हम देखें तो ये जो नम्रता का स्वभाव है ये तो बहुत ही विशेष और बहुत ही अच्छा ऐसा सामाजिक गुण के रूप में देखा जाता है। Though it is true of Greek culture, I would say it is true in most of the cultures. हालांकि ये बात ग्रीक परंपरा में सही है लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि लगभग सभी परंपरा में ये बात बिल्कुल सही होती है। Oh, people in Tamil Nadu, they love to be kind, gentle and humble. तमिलनाडु के लोग भी नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में रहना पसंद करते हैं, उन्हें ये अच्छा लगता है। Oh, people in other states of India would like to have such an attitude. भारत देश के दूसरे भी राज्य के जो लोग हैं वो इस तरह की मनोदशा और रवैया रखना चाहते हैं। But the problem with this is, because people understand or misunderstand the word meekness, they don't want to be manifesting this quality. बस समस्या ये है कि लोग दीनता इस शब्द को, नम्रता इस शब्द को नहीं समझते, इसलिए वो अलग गुण दिखाते हैं। Sometimes it is understood to be fearful and cowardly. कई बार इसे इस तरह से गलत समझा जाता है कि ये तो डरपोक होना है या फिर भयभीत होना है, इस तरह का स्वभाव रखना माना जाता है। But the way it is used in the original languages, it is very strong and forcefully communicating this idea, that is to bring one's power, to bring one's strength under control. लेकिन अगर असली भाषा में इसका अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि किसी की सामर्थ या किसी का जो अधिकार है उसे सही रूप में, सही नियंत्रण में लेकर आना है। It is like controlling a wild horse ये तो मानो जंगली घोड़े पर नियंत्रण करने के जैसे होता है and taming it to do what we want and where to go. और हम उसे एक पालतू घोड़ा बनाएं जिससे हम जहां ले जाना चाहे वहां जाए, जो करवाना चाहे वो करवा सकें। It doesn't go anywhere, wherever it wants. लेकिन जंगली घोड़ा तो ऐसा नहीं होता है, जहां भी चाहे वहां जाता है। But tuning it or training it in such a way where we bring it under control. That is a kind of word idea coming from the New Testament. लेकिन हम उस घोड़े को ऐसा ट्रेन करते हैं कि वो हमारे अधिकार में आ जाता है,
इस शब्द का यहाँ पर बस यही तो अर्थ होता है। So it is a character coupled with humility. यानी ये तो ऐसा चरित्र है जो कि नम्रता के साथ में जुड़ा है। The meek person does not threaten and challenge others. जो नम्र व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति को धमकाता नहीं, उसे चुनौती नहीं देता है। He accepts people openly and confidently. वो तो खुले रूप में लोगों को स्वीकार करता है, भरोसे से उन्हें स्वीकार करता है। So a person who is humble, who is gentle, those are the synonyms used for this word meekness. यहाँ पर नम्र शब्द के लिए दीन और कोमल शब्द उपयोग किए गए हैं। Meekness is not weakness. देखिए, नम्रता जो है वो तो कमजोरी नहीं है। We confuse the two sometimes. कई बार इन दोनों शब्दों में हम गड़बड़ी में आ जाते हैं, गलत समझते हैं। But the difference between a meek person and a weak person is this: a weak person can't do anything. नम्र व्यक्ति में और कमजोर व्यक्ति में यही फर्क है कि कमजोर निर्बल व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, यही बड़ा फर्क होता है। A meek person, on the other hand, can do something, but he chooses not to do. जबकि दूसरी ओर नम्र व्यक्ति तो ऐसा होता है जो कि कुछ कर सकता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करने का निर्णय लेता है। Oh, they can control, but they give freedom for other people. वो नियंत्रण तो कर सकते हैं लेकिन वो दूसरे लोगों को पूरी स्वतंत्रता देते हैं। They want to help others also to enjoy their rights. वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं ताकि वो भी अपने अधिकारों का आनंद उठा सकें। Though they have the right, they don't want to impose it on others, rather giving them the freedom and allowing them to exercise their choices and opportunities. हालांकि उनके पास अधिकार होता है, वो उसका उपयोग नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बजाय दूसरों को मौका देते हैं कि वो अपनी आज़ादी, अपने विचारों का वो पालन करें। Now the question is, why this quality is so much valued and honored by God, so that He says that blessed are those who are meek, for they will inherit the earth. अब ये बात क्यों परमेश्वर के लिए इतनी मायने रखती है कि उसने कहा कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। I want to share with you a few important thoughts that has come to my mind when I think about this word meekness. जब मैं नम्र शब्द के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में आने वाले कुछ विचारों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। First of all, meekness is a quality characteristic of God. सबसे पहले नम्रता ये तो परमेश्वर के सबसे उत्तम गुणों में से, खासियत में से एक है। You know, when God reveals Himself, He reveals Himself as a person who is meek. जानते हैं, परमेश्वर जब खुद को प्रकट करते हैं तो वो अपने आप को एक नम्र व्यक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। What do we mean by that? इससे क्या मतलब है? Does He not have power? क्या उसमें सामर्थ्य नहीं है? No, no, He has all the power in the world. नहीं नहीं, उसमें संसार की सारी सामर्थ्य है। However, He does not exercise His anger and power simply on people. और वो अपने क्रोध को और अपने सामर्थ्य को ऐसे सीधा लोगों के ऊपर उपयोग नहीं करते हैं। He is more known of as a merciful God. वो तो दयालु परमेश्वर के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। He is a very kind God. वो बहुत ही दयालु और करुणामय परमेश्वर हैं। I want to read a passage from Exodus chapter 34 verses 5 to 6. निर्गमन अध्याय 34 वचन 5 से 6 यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता It हूँ। says, Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his names, the Lord. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़े होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। He reveals his nature as somebody who is slow to anger, abounding in love and faithfulness. वो अपने स्वभाव को यहाँ पर दिखाते हैं कि वो तो दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है। So when God is saying, blessed are the meek, He is basically saying, you follow my quality or my nature, my characteristic. जब परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि धन्य है जो नम्र हैं, तो उसका मतलब ये है कि तुम मेरे स्वभाव गुणों का पालन करते जाओ, मेरी विशेषताओं का तुम पालन करते चले जाओ। Psalm 103:8 also says like this, the Lord is compassionate and gracious,
slow to anger, abounding in love, and this is the quality we observe from God. भजन संहिता 103 वचन 8 भी यही कहता है कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। इन विशेषताओं का हमें पालन करना चाहिए। Slow to anger, gentle but abounding in love. अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। ये यहाँ पर हमें इस तरह से बताता है। There's a very, very important verse in the book of Zechariah. जकरिया की किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। Zechariah chapter 9 verse 9. जकरिया अध्याय 9 वचन 9। When you read Zechariah 9:9, it says, "Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, daughter of Jerusalem, see, your king comes to you, righteous and having salvation." Look at this very carefully. Gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। इस तरह कहता So है। he is a gentle God. यानी वो तो बहुत ही दीन परमेश्वर हैं। So when we talk about meekness, the very first thing I want to show before you is Bible says that the God we believe in, or the God of the Bible, is a meek God, a gentle God, a humble God. जब हम नम्रता के बारे में कहते हैं तो हम यही कह रहे हैं कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर तो दीन है, वो बहुत ही नम्र हैं। And the understanding is this, that humility is not because he doesn't have the power, he has the power, but keeps it under his control. और इसके द्वारा हम ये समझते हैं कि उसकी नम्रता का मतलब ये नहीं कि उसमें सामर्थ्य नहीं है, उसमें सामर्थ्य है लेकिन वो उसे अपने वश में रखते हैं, अपने नियंत्रण में रखते हैं, और यही तो उसकी नम्रता है। That is the first quality, that is the first thing we want to communicate to you today. हम आपको इसी पहली विशेषता के बारे में आज बताना चाहते हैं। And the second idea I want to place before you is that meekness is a sign of being close to God. और दूसरा विचार जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि नम्रता परमेश्वर के बहुत करीब होने का चिन्ह होता है। ये बताता है कि हम परमेश्वर के निकट हैं। I believe that's why Jesus is teaching like this, blessed are those who are meek. मैं विश्वास करता हूँ इसलिए यीशु ने ये सिखाया कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं। Those who are close to God will naturally develop this quality. जो परमेश्वर के करीब हैं वो स्वाभाविक रूप में इस विशेषता को बढ़ाते जाएंगे। Like we also told you in the previous program, when we come into face to face with God, we know how weak we are, how sinful we are. Therefore, it naturally makes you humble. और पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया कि जब हम परमेश्वर के करीब आएंगे तो हम जानेंगे कि हम कितने कमजोर हैं, हम कितने पापी हैं, तो ये स्वाभाविक रूप में आपको नम्र बनाता है। In the book of Numbers, chapter 12, verse 3, we read about a man. गिनती अध्याय 12 वचन 3 में हम एक मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं। This man was called by God to lead the people from the land of Egypt into the land of Canaan. इस मनुष्य को परमेश्वर ने बुलाया था कि वो इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालकर कनान देश में लेकर जाएं। And regarding that man, God gives this wonderful opinion. और उस मनुष्य के बारे में परमेश्वर ये बहुत ही अद्भुत अपना दृष्टिकोण बताते हैं। It says, now Moses was a very humble man. ये कहता है मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। A very meek man, if you want to use the word meek. अगर आप दीन शब्द उपयोग करना चाहते हैं तो कह सकते बहुत दीन था। It says, more humble than anyone else on the face of the ये earth. कहता है कि पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। What a great compliment to get from God. ये तो परमेश्वर की ओर से सराहना का सबसे उत्तम शब्द है, Because he was talking to God. क्योंकि वो तो परमेश्वर से बातें करता था, He was very close to God. वो तो परमेश्वर के बहुत ही करीब था। He knew what is humility when he stood before God. जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा रह जानता था नम्रता क्या He है। clearly understood that in front of God, you cannot really brag and boast except maintain an attitude of humility. और वो इस बात को समझ गया कि परमेश्वर के सामने हम घमंड नहीं कर सकते। अच्छा है कि हम नम्रता का स्वभाव रखें। So, when a person is meek, like I told you, a person who is close to God can become meek. What we say is,
जब हम कहते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब है वो नम्र होता है, तो इसका कहने का मतलब ये है You put your own power under God's control. आप अपनी सामर्थ्य को परमेश्वर के नियंत्रण के अधीनता में रखते हैं, Sometimes even others' control. यहाँ तक कि कई बार दूसरों के नियंत्रण में आप अपनी सामर्थ्य रखते हैं। Or we don't claim our rights many a time. या कई बार हम अपने अधिकारों का दावा नहीं करते, We give up, हम उसे छोड़ देते हैं, we sacrifice हम उसका बलिदान करते हैं, because it is a quality God expects from us. क्योंकि परमेश्वर हमसे इसी विशेषता की अपेक्षा करते You know, हैं। in the world, many are convinced that arrogant people, powerful people seem to win in their lives. शायद बहुत से लोग इस बात से सहमत होंगे कि संसार में ऐसे दिखाई देता है कि अहंकारी लोग, सामर्थ्य लोग अपने जीवन में जयवंत हो रहे हैं। But in the end, actually, if you see, they lose. लेकिन अगर हम गौर से अंत में देखें तो यही पाएंगे कि वो तो हार जाते हैं। Why they lose is because they lose their personal relationships. वो क्यों हार जाते हैं? क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत संबंध को चूक जाते हैं। Nobody wants to be a friend of an arrogant person, like I told you earlier. जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी अहंकारी व्यक्ति का मित्र बनना नहीं चाहता है। Somebody who is self-attesting always, nobody wants to be close to him. जो व्यक्ति हमेशा खुद की तारीफ करते रहता है, कोई उसके साथ में रहना पसंद नहीं करता है। But a meek person, God is very close, and this person is also close to God. Wherefore, God guides him. Bible says in Psalm 25:9, He guides the humble and in what is right and teaches them His way. भजन 25:9 में बाइबल कहती है, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। You also have Psalm 147:6. It says, The Lord sustains the humble, but casts the wicked to the ground. भजन संहिता 147:6 कहता है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। Psalm 149:4 says, For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with salvation. भजन संहिता 149:4 कहता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वो नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। So what do we learn from all these verses? तो हम इन सारे वचनों से क्या सीखते हैं? It says a meek person has a connection with God, a relationship with God, and God works in his life every day. ये कहता है कि नम्र व्यक्ति का प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में संबंध होता है और परमेश्वर प्रतिदिन उसके जीवन में काम करते रहते हैं। That's why I say meekness is a sign of being close to God. और इसलिए मैं कहता हूँ कि नम्रता जो है वो तो परमेश्वर के करीब रहने का चिन्ह होता है। And the third idea I want to leave before you is this, that the meekness reveals the wisdom in a person. और तीसरा विचार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नम्रता उस व्यक्ति के अंदर बुद्धि को प्रकट करती है। If you are meek, you are revealing your wisdom and your understanding. अगर आप नम्र व्यक्ति हैं तो आप अपनी समझ और अपनी बुद्धि को प्रकट करते हैं। Proverbs chapter 14 verse 29. नीति वचन अध्याय 14 वचन 29 ये कहता है, It says, A patient man has great understanding, but a quick-tempered man displays folly. ये कहता है जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वो मूढ़ता की बढ़ती करता है। So, when you reveal your action, when you deal with people, how you deal is very, very important. और इसीलिए जब आप प्रतिक्रिया करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो कैसे व्यवहार करते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। If you are a quick-tempered person and is an angry person, oh, you can't really accomplish anything. You can't inherit the earth. अगर आप जल्दी से क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं तो मैं आपको बता दूं तो आप कुछ भी नहीं पाएंगे, आप पृथ्वी के अधिकारी नहीं होंगे। That's why word of God is very clearly saying a patient man has great understanding. इसलिए वचन स्पष्ट कहता है कि जो व्यक्ति धीरज धरता है उसमें बड़ी समझ होती है। James makes it much more clear. James is one of the book in the New Testament, 3rd chapter, 13th verse. It says, Who is wise and understanding among you? Let him show it with his good life by deeds done in the humility that comes from wisdom. नए नियम में याकूब की किताब कहती है, याकूब 3:13 ये कहता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। Therefore, show your deeds, show your action by your wisdom. You reveal your wisdom by showing your humility. आप अपनी नम्रता दिखाने के द्वारा आप अपनी बुद्धि को और ज्ञान को और समझ को प्रकट करते जाएं।
That is a calling Bible gives to us. और यही तो बुलाहट बाइबल हमें देती है। Or if you are a meek person, people will honor you. अगर आप नम्र व्यक्ति हैं तो लोग आपका आदर करेंगे। You know, you reveal your wisdom. आप अपनी बुद्धि प्रकट करेंगे। They would like to be connected to you. लोग आपके साथ में जुड़ना पसंद करेंगे। They would like to spend time with you. लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। They will long for your वो presence. आपकी उपस्थिति निश्चय पसंद करेंगे। That's why Jesus is saying, blessed are the meek. और इसलिए यीशु ने कहा कि धन्य है वे जो नम्र हैं, They will inherit the earth. वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Oh, they will inherit all the people. They will have more friends. और वो सभी लोगों को जीतेंगे और भी ज्यादा मित्र पाएंगे। Oh, lot of people will follow them. बहुत से लोग उनके पीछे चलेंगे। Apostle Paul says in 2 Corinthians 10:1, by the meekness and gentleness of Christ, I appeal to you, I, Paul, who am timid when face to face with you, but bold when away. दूसरा कुरिन्थियों 10:1 में पौलुस कहता है, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। वो कहता है, तुमको मैं मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। He appeals to them in the meekness of Christ. वो मसीह की नम्रता में उनसे, कोमलता में उनसे विनती करता है। That's why he was a great apostle. और इसीलिए वो सच में बहुत ही महान प्रेरित रहा। He loved people. वो लोगों से प्रेम करता था। I want to tell you one thing and close this sermon. इस संदेश के अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। You know, this gentleness must be made known to others. ये जो नम्रता है, ये तो दूसरों को दिखाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए। And there's a commandment given in the book of Philippians chapter 4-5 saying, let your gentleness be evident to all. फिलिपियों 4:5 में हमें ये आज्ञा दी गई है कि तुम्हारी जो नम्रता है उसे सब लोग जानने पाए। इस तरह हमें आज्ञा दी गई है। Let your gentleness be evident to all, the Lord is near. तुम्हारी नम्रता सबके सामने प्रकट हो, प्रभु का आना निकट है। How can we make it known? हम इसे कैसे दूसरों को दिखा सकते हैं? I want to tell you that you can make it known when you share your faith. जब आप अपने विश्वास बांटेंगे तभी आप इसे दूसरों को दिखा सकते हैं। 1 Peter 3:15 says like this, but in your heart set apart Christ as Lord, always be prepared to give an answer to everyone who asks you about the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. पहला पत्रस 3:15 कहता है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। इस तरह ये बताता है कि हमेशा नम्रता और भय के साथ तैयार रहो। Reveal your meekness in sharing your faith. अपने विश्वास को बांटने में आप अपनी नम्रता प्रकट करते चले जाएं And share it in a gentle way. और इसे बहुत ही नम्रता के साथ में बांटें। Just this one reason I want to leave with you before I close this word. ये संदेश खत्म करने के पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण वचन बताना चाहता हूँ। Matthew 11:29 it says, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. मत्ती 11:29 कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इस तरह ये कहता है। Jesus is gentle. यीशु तो बहुत नम्र हैं। He is calling you. वो आपको बुला रहे हैं। He wants you to accept him and believe in him and reveal the same quality to others. वो चाहते हैं कि आप उसे स्वीकार करें और उसी के गुणों को दूसरों पर प्रकट करें। And may God bless you to follow this wonderful attitude that he is prescribing to us. परमेश्वर ने हमें ये जो विशेष स्वभाव गुण दिया है उसे हम दूसरों पर प्रकट करें और इसके द्वारा परमेश्वर हमें बहुत आज से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number